Last night, I was up for like couple of hours to figure out what should I say, what should my topic be. ये topic भी मैंने अभी decide किया है, probably आधा घंटा पहले. So I didn't know what my topic is going to be. I just like to be natural. My goal here right now in this talk is to tell you guys what passion is, right? And according to me, passion is me. So if I am talking to you guys here, if it doesn't reflect the passion, तो मेरे यहाँ होने का फायदा नहीं है कुछ. Secondly, if my energy levels are a bit low today, so please excuse me because I had fever, but I just made it for this talk. So my topic today is limitless. मेरे नाम मैं करता क्या हूँ उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए because this is all about being passionate for what you do. तो मेरे फोटो के नीचे बस limitless लिखा है और इतना काफ़ी है. आज मैंने सोचा even if I mess up this talk completely तो क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा. हमेशा I have seen my life as if I am watching myself on a TV screen and I'm not making this up, okay? This is entirely true. When I'm watching myself on a TV screen, मुझे जो लाइफ में बनना है वो सब लोग जो बन चुके हैं वो सब अपनी लाइफ में बहुत मैसअप्स कर चुके हैं. सो व्हाट दिस टेड टॉक ये वाली भी मैसअप हो गई तो क्या हुआ, फर्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा. मैसअप होने ज़रूरी है, उसी से आप सीखते हो. तो मैंने कुछ प्रिपेयर ही नहीं करा. उसके बाद माई टॉपिक इज़ लिमिटलेस. ये लिमिटलेस टॉपिक केम वेरी नेचुरली टू मी बिकॉज आई हैड माई चाइल्डहुड वॉज अ सर्टन वे एंड आई वॉज ऑलवेज शोन लिमिट्स दैट इतना खर्चा नहीं करना, उसका लिमिट ये है. यू कैन नॉट गो ऑन दैट स्कूल ट्रिप बिकॉज दिस इज द लिमिट. यू कैन नॉट go out with friends after 7 p.m. This is the limit. And because of another thing that happened during my childhood, I also became a rebel. तो मैं हर चीज़ को ना rebel करने लगा. And this is a true story. And I actually, my brain became limitless. Now when I think about it, I will think about anything or any goal that I have to achieve, or even if I have to run a business, I'll think about it in a very limitless way. So for example, if I have to build a company, I will think about why can't the next Google or the next big tech company come out of India? And why can't I build that, right? So you have to aim big. That's why the topic is limitless. So as I said, I don't have a script today, but what I'm going to tell you guys is my real story. I don't know मैं किसी को inspire कर सकता हूँ कि नहीं. That's also not the objective. But the theme today is passion meets purpose. And then how do you kind of find your life mission? So first of all, मुझे ऐसा लगता है you cannot find passion. Passion प्यार की तरह होता है. You cannot find it. It comes to you. That's true, huh? Also, passion lies in the proximity. 80% लोगों को उनका खुद का passion proximity में से मिला अपनी खुद की. क्योंकि आप लाइफ में ना, if you have to find your passion, you only have few years जिसमें आप जियोगे, जिसमें आप explore करोगे. So you can only do finite things. और जब आप finite things करते हो ना, तो वो फाइनाइट थिंग्स में ही पैशन मिल जाता है लोगों को. ईदर यू आर अ किड, यू आर एन अडल्ट, और मे बी यू नो यू हैव क्रॉस योर 40s, डजंट मैटर. आपको पैशन अपनी प्रॉक्सिमिटी में ही मिलेगा, तो ढूंढने का कोई फायदा नहीं है. बट वन थिंग दैट यू कैन डेफिनेटली डू इज यू शुड कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन. क्योंकि जब वो पैशन या वो लव, वो प्यार आपकी जिंदगी में आएगा, यू हैव टू ग्रैब ऑन टू दैट अपॉर्चुनिटी. यू कांट मिस आउट ऑन दैट. सो यू हैव टू ग्रैब ऑन टू दैट अपॉर्चुनिटी. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. I was thrown into an engineering college क्योंकि पता नहीं था उस टाइम पे करना क्या है. अगर मेरे टाइम पे Instagram और YouTube इतना पॉपुलर होता तो probably मैं एडिटिंग सीख लेता, थोड़ा बहुत बोल लेता और रील्स पे व्यूज़ आ जाते, probably मैं भी यूट्यूबर होता. बट वो था नहीं, तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया. नाउ मेरी स्टोरी बहुत क्लीशे है. विद ऑल ऑफ दिस थॉट प्रोसेस एंड दैट रेबेल इन माई हेड, विद मी बीइंग लिमिटलेस, फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज आई सॉ सोशल नेटवर्क. बहुत ही क्लीशे स्टोरी है मेरी. सो आई सॉ फेसबुक गेटिंग क्रिएटेड. मुझे लगा यार ये तो काफ़ी कूल है, अगर कुछ करना है तो इतना ही बड़ा करते हैं, वरना करने का फ़ायदा क्या है. एंड देन आई स्टार्टेड परसुइंग दैट. नाउ आई एम अ बीटेक ग्रेड फ्रॉम अ tier 3 कॉलेज. मेरे कॉलेज में बहुत अच्छी कंपनीज तो आती नहीं है प्लेसमेंट पे. वही कंपनीज आती है जो 100 बच्चे इकट्ठे उठा के ले जाते हैं. एंड आई डिडंट वांट टू बी वन ऑफ देम. आई एम एक्चुअली सेइंग द ट्रूथ, ओके. एंड देन I was from an ECE background. और ECE भी पता क्यों चूज करी थी? क्योंकि कुछ लोगों से कंसल्ट किया जो मुझसे बड़े थे और उन्होंने बोला सुनो कंप्यूटर साइंस थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस मत लो क्योंकि पता नहीं है कल को प्लेसमेंट होगी कि नहीं. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2009.
ईयर 2010। तो उन्होंने बोला कंप्यूटर साइंस मत लो, और उन्होंने बोला दूसरी स्ट्रीम भी मत लो, लाइक मैकेनिकल एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स लो, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे ना, आप कल को कंप्यूटर साइंस में स्विच कर सकते हो। दे वॉन्टेड मी टू बी ऑन द सेफर साइड, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ले ली। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई स्कोप ही नहीं था, ऊपर से मैं टियर 3 कॉलेज में था, कोई कंपनी नहीं आती थी प्लेसमेंट के लिए। तो सेकंड ईयर में जब मैंने ये फर्स्ट ईयर में सोशल नेटवर्क देखी, आई डिसाइडेड इन सेकंड ईयर कि यार मैं ना खुद का एक प्लेटफॉर्म कोड करता हूँ और मैं भी मार्क जकरबर्ग की तरह कॉलेजेस को कनेक्ट कर दूंगा। एंड आई रियली बिल्ट अ प्लेटफॉर्म लाइक दैट। आई लर्नड हाउ टू कोड इन PHP, बिल्ट अ प्लेटफॉर्म। इट वॉज अ ह्यूज फेलियर, मेरे को UI भी बनाना नहीं आता था, सब कुछ फेल हो गया। इट वॉज अ वेरी बगी प्लेटफॉर्म, बट क्योंकि मेरा कॉलेज इतना छोटा था, वहाँ पे कोई कुछ करता ही नहीं था, आई बिकेम वेरी पॉपुलर इन कॉलेज। कि एक लड़का है, उसने ऐसी एक वेबसाइट बनाई है जो 5-6 कॉलेजेस यूज़ करते हैं। एंड इट वॉज आई वुड से इट वॉज अ गुड एंटरप्रेन्योरियल लेसन फॉर मी। तो वहाँ पे ना मुझे ये पता लग गया कि मुझे ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में मज़ा आता है, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही मेरा पैशन बन गया। एंड देन बाय द टाइम आई हिट 4th ईयर, मैं वो 100 बच्चों वाली 2 कंपनीज में प्लेस हो गया था, बट आई डिडंट टेक एनी ऑफर। और उसके बाद मैंने एक और स्टार्टअप किया विच वॉज अ रिचार्ज वेबसाइट लाइक Paytm इज टुडे, और फ्री चार्ज वॉज बैक इन द डेज। एंड देयर वाज अनदर वेबसाइट, आई डोंट नो इफ एनी वन ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ इट, देयर वाज अ वेबसाइट कॉल्ड रिचार्ज इट नाउ। तो मैं कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा था, एंड मैंने सोचा एक रिचार्ज वेबसाइट बनाते हैं। एंड देन आई डिड सम यूनिट इकोनॉमिक्स, एंड मुझे लगा बहुत बढ़िया बिजनेस बन जाएगा इससे। तो रिचार्ज वेबसाइट लॉन्च की। अब मुझे ना जितनी कोडिंग आती थी ना, उसमें मैं रिचार्ज वेबसाइट का बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकता था। सो व्हाट आई डिड इज आई आउटसोर्स, दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक, इट वाज सो फुलिश ऑफ मी, बट आई आउटसोर्स द टेक ऑफ दैट होल रिचार्ज वेबसाइट सॉल्यूशन टू अनदर कंपनी। एंड उन लोगों ने टेक बनाया, दे कंप्लीटली मेस्ड इट अप। ओके, आई टुक अ लोन टू पे देम, आई हैड नो मनी, आई डिड एन इंटर्नशिप इन कॉलेज, वो पैसे भी वहाँ पे चले गए। बट इट कंप्लीटली फेल्ड, क्योंकि वो प्रोडक्ट इतना बगी बन गया that they started charging me $2,000 for every bug, and I had no money. So वो website had to shut down after an year. जब वो website shut down हुई, I went through depression. 6 months I was so low because मुझे लग रहा था मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, मैं पैशन भी फॉलो कर रहा हूँ, और मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में पूरा फोकस्ड हूँ। मैंने प्रोडक्ट पूरा सोच लिया, मैंने पूरी एनालिसिस भी कर ली, बट थिंग्स डिडंट कम माई वे, एंड आई वॉज लुकिंग थ्रू इट थ्रू एन इमोशनल लेंस, और वो फेल हो गया। And I fought depression, 6 महीना I was like that. Then I obviously to make ends meet I had to take a job. But अब मुझे कोडिंग में जाना था। This is after मैंने अपनी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स एक टियर 3 कॉलेज से कंप्लीट कर लिए। I thought कोडिंग में जाते हैं। तो मैंने पूरी कंप्यूटर साइंस 6 महीने में बैठ के पढ़ी, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, सिस्टम डिज़ाइन, फ्रंट एंड बैक एंड कैसे होता है। एंड देन नेक्स्ट 7-8 years of my life I worked as an engineer. So I worked at eventually I ended up working with couple of big product based companies in India because I worked hard. और मैंने कोडिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी। I was very clear in my head that मुझे कोडिंग इसलिए करनी है क्योंकि कल को मुझे कोई एक और ऐसी कंपनी बेवकूफ़ ना बना दे, बिकॉज मुझे एक टेक कंपनी खोलनी है। सो दैट वॉज वेरी क्लियर। और मैं सिर्फ कोडिंग में घुसा इसलिए 7-8 साल आई लर्न ऑल ऑफ दैट। एंड देन इन माई लास्ट जॉब आई वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, मे बी 2,000 or 3,000 odd in a span of 2.5 years, and that's how my current venture was actually born. Now I'm a 3-year-old experienced founder, pretty young as compared to people who have made India really really proud. But ये 3 साल में I have learned a lot. इतना तो मुझे पता लग गया था, पैशन डंडे से नहीं आता। और मुझे तब पता था जब मैं जॉब करता था, मुझे तब ये पता था कि मैं सुबह कितने बजे जा रहा हूँ और रात को घर कितने बजे आ रहा हूँ। एंड आई हैड मंडे ब्लूज, ऑल ऑफ दोज थिंग्स कि ओ नो मंडे फिर उठना पड़ेगा, काम पे जाना पड़ेगा। बट जब से मैं फुल टाइम फाउंडर बनाऊँ, मुझे पता ही नहीं है मंडे कब आता है और सैटरडे कब आता है और संडे कब आता है, बिकॉज मैं इन द मोमेंट इतना ज़्यादा कैप्चर्ड हूँ। इट टेक्स सो मच ऑफ माई अटेंशन दैट आई रियली रियली एन्जॉय इट, एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू मीनिंग ऑफ पैशन. दैट इज वॉट इज एक्चुअली द ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस while being at work. तो मेरे पहले 3 साल में of developing my current venture, I learned a lot. First year we were 2 co-founders. I gave offer to approximately 15 people to join our company. None of them joined. They turned down the offer letters. And trust me, before this I was an engineering manager, which is like managing a team of 7 different people in a big company. And मुझे कभी लगा ही नहीं था, मैंने कहा कितना हार्ड होगा, I'll hire engineers, but 15 people turned down the offer.
6 months into building the startup, I realized that hiring in an early stage startup is nothing but selling. You sell your vision, you sell a product that you will build, you sell a culture that they will come and build. So everything is into the future. So I realized in the very first year that you have to say all of these things with so much conviction that they believe you, because you are the product right now. So can you have those convincing skills? Can you have the skills to make someone believe that you are the product and they should join you, they should bet on you so that they join eventually. And I learned this art in the very first year of founding my own startup. And eventually few people joined, and we were able to build a product, gain some customers. Second year, this was my first learning from the first year. My learning from the second year, as we were growing my venture, was we did a pivot. हमने फर्स्ट ईयर में जो बनाया था ना, सेकंड ईयर में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जो फर्स्ट ईयर से ज़्यादा बड़ी थी. Probably हम वो ग्रैब ही नहीं कर पाते वो अपॉर्चुनिटी अगर if our eyes and ears were not open. सेम जो मैंने पैशन में बोला ना कि यू शुड कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन अगर आपको अपना पैशन ढूंढना है, क्योंकि आपके आसपास ही है. और कुछ लोग ना डरते हैं अपना पैशन ढूंढने से कि आसपास है, बट अगर मैं ये करूंगा या करूंगी तो रिस्की होगा, मुझे अपनी लाइफ को रिस्क पे डालना है. इसके बारे में मैं एंड में बात करूंगा. बट माई सेकेंड ईयर वॉज लाइक दैट एंड वी डिड अ कंप्लीट पिविट. जब हमने पिविट किया, वी इंस्टेंटली ग्रू अ लॉट, प्रोबेबली टच्ड $1 million इन रेवेन्यू पिविट करने के 6 महीने बाद ही. एंड इट वॉज ओनली बिकॉज वी वर सो इन्वेस्टेड, बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग माई पैशन. अगर पैशन नहीं फॉलो करता तो मैं भी 8 बजे घर चले जाता, 6 बजे घर चले जाता जॉब करने के बाद. बट बिकॉज वी फॉलोड आवर पैशन, वी वर एबल टू invest ourselves so much that we were able to figure out that pivot. So second year was all about pivoting, but second year was a lot also about figuring out what to do correctly to crack distribution. And that was my second year learning from my startup. My third year learning was, and which is the current ongoing year, is building leadership. I realized that as a founder, you cannot do things alone. Team is what does it for you. आप जितने मर्जी तोप फाउंडर हो, जितना मर्जी आपको दुनिया भर का ज्ञान है, जितनी मर्जी आप हैंड्स ऑन हो, डजेंट मैटर. अगर आपकी टीम नीचे की जो एग्जीक्यूट कर रही है वो अच्छी नहीं है ना, यू आर एज गुड एज योर टीम. दैट वॉज माई लर्निंग फ्रॉम द थर्ड ईयर. एंड इट brought me to a point where we figured that if your company or whatever you're building today has to grow, it has to be a team effort, and that is where leadership has to be developed. You cannot do it alone. And bringing the right people as founder or as a CEO or as an entrepreneur today, you have to invest most amount of your time in building a team, which means hiring. तो थर्ड ईयर से लर्निंग मेरी ये थी. ये सारी लर्निंग्स में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी, दैट मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं काम कर रहा हूँ, कभी भी नहीं. मैं 7-8 साल आई वर्कड एज एन इंजीनियर. आई हैव ऑलवेज फेल्ट, ओ माई गॉड, टुमारो आई हैव टू गो टू द ऑफिस, tomorrow I have to do this and that, because I had a larger goal in the picture and I was really desperate for it to come. But जब we started the company, मुझे कभी ऐसा सोचने का मौका ही नहीं मिला, because we were so invested in now कि अभी करते हैं. And honestly जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी, मैंने अपने इतने बेबी स्टेप्स लिए थे. मैंने अपने को फाउंडर को जाके बोला था कि एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदते हैं, कंपनी के लैपटॉप पे कोड नहीं कर सकते. हमने 20,000 रुपीज़ का लैपटॉप खरीदा, हमने उस पर कोड करना स्टार्ट किया. एंड देन आई टोल्ड माई को फाउंडर, देखो फंडिंग रेज नहीं करेंगे जाके, वी विल बिल्ड अ बिजनेस जो अभी जो हम जॉब से कमा रहे हैं ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें दे दें, एंड विल बी सेल्फ सस्टेनेबल. दैट्स अबाउट इट. एंड सिर्फ इतना वो थॉट प्रोसेस वॉज इनेबल्ड अस टू क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड एंड टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड स्टार्ट द कंपनी. तो ऐसे हमने कंपनी स्टार्ट करी थी. और मुझे याद है मैं बहुत पैशनेट था जब हमने कंपनी स्टार्ट करी थी. I used to lead a huge team, okay? तो बड़ी टीम, अब लोग आजकल लोगों से मैं मिलता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ यार अपनी कंपनी स्टार्ट कर लो, इंडिया में और जॉब्स क्रिएट कर दो. इन कॉलेज में अगर किसी कॉलेज में हो तो खुद की कंपनी स्टार्ट कर लो, अपने कॉलेज के ही लोगों को एम्प्लॉय कर लो. वो लोग बोलते हैं यार हमारे पास ना इतना टाइम नहीं है. तो मैंने तो जब कंपनी स्टार्ट करी थी मैं 10-12 घंटे तो ऑफिस में देता था, और उसके बाद जब कंपनी स्टार्ट करी उसके बाद उसका काम शुरू होता था. आई यूज टू वर्क टिल 8 or 9 PM फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आई वॉज हैंडलिंग अ ह्यूज टीम. बट 8 or 9 PM के बाद I used to work till 4 AM, and we continued this for 1 year before I left my job.
And morning, I used to have a morning call with my seniors, with my team members. And वो कॉल सुबह 10 बजे होती थी. So I used to sleep like 4-5 hours. We continued this for 1 year. अभी तक भी संडे भी ऑफ नहीं लिया, फर्क भी नहीं पड़ता. मैं वेकेशन पे भी जाता हूँ, so I'm hooked. I'm wired to. I live and breathe my company because वो पैशन वो सब अपने आप ऑटोमेटिकली कराने लग जाता है. कुछ इसके ना और एग्जाम्पल्स हैं. एंड पैशन मीट्स, मेरे को लगता है पर्पस इज अ बाय प्रोडक्ट. अगर आप अपना पैशन ढूंढ लोगे तो आपको पर्पस खुद से पता लग जाएगा. आपको इतना कुछ फिगर आउट नहीं करना. देयर इज ऑल्सो अ कॉमन सेइंग, मैं ट्विटर पे आज मॉर्निंग में पढ़ रहा था. द कोट सेड दैट यू टेक अ जॉब इफ इट गिव्स यू द एबिलिटी टू अर्न और लर्न. इफ इट हैज ईदर वन ऑफ देम, यू टेक अप द जॉब. इफ इट हैज बोथ ऑफ देम, अमेजिंग. इफ इट हैज नन, लीव द जॉब. तो मैंने यार सोचा कि हाँ, अर्न और लर्न तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, करनी चाहिए. बट व्हाट इफ अगर अर्निंग भी हो जाए और लर्निंग भी हो जाए, बट उसकी कोई लिमिट ना हो. मुझे क्यों डिफाइन करना है मैं इतना ही अर्न करूंगा या मैं इतना ही लर्न करूंगा. बट अगर उसकी कुछ लिमिट ही ना हो, दैट कैन ओनली हैपन इफ यू परस्यू योर पैशन. तो आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल. वो लोग बोलते हैं कि यार बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकिंग है अपना पैशन को परस्यू करना. आई एम श्योर a lot of you already have passion. Show of hands जिन जिन लोगों को किसी भी चीज़ का पैशन है. Quite a few of them. कौन कौन लोग उसको परस्यू कर रहे हैं? 50% से भी कम हो गए. एंड आई एम श्योर जिन्होंने अपना हैंड रेस किया है वो भी पूरी तरह से परस्यू नहीं कर रहे होंगे. तो बेसिकली आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल. एंड मैं बोलना ये चाहता हूँ कि यू आर बॉर्न इन एन एरा जहाँ पे यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग ऑन द palm of your hand, including earning money. Honestly, you have platforms like Instagram today. You have a platform like YouTube today. अगर आपको कुछ भी करना नहीं आता ना, let's say your hobby is watching Netflix, you become a content creator जो पूरा टाइम Netflix देखता रहता है. And trust me, public है जो इसको भी देखेगी. तो रिस्क तो कुछ है ही नहीं आज की डेट में. रिस्क तो इंडिया में 2010, 2012, 2013 और उससे पहले के ज़माने में था. आज के ज़माने में कोई रिस्क ही नहीं है. नाउ when I say that, मुझे लगता है टाइम इज नाउ. और आज वो टाइम है जहाँ पे यू कैन टेक दैट नेक्स्ट स्टेप एंड बिल्ड समथिंग और फॉलो योर पैशन. वो पैशन कुछ भी हो सकता है. टीचर बनना भी एक पैशन हो सकता है. शेफ बनना भी एक पैशन हो सकता है. फोटोग्राफर बनना भी एक पैशन हो सकता है. बट वो पैशन को परस्यू करने के बहुत सारे तरीके हैं. मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. मुझे ऐसा भी लगता है काफ़ी लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं करते क्योंकि उनकी अगेन आई सेड पैशन लाइज इन योर प्रॉक्सिमिटी. मुझे काफ़ी टाइम ऐसा लगता है कि वी आइडलाइज द रॉन्ग पीपल, वी आर फॉलोइंग द रॉन्ग पीपल. इंडिया इज़ अ वेरी बॉलीवुड लविंग नेशन. तो जो बॉलीवुड में दिखाया जाता है ना, हम उसको फॉलो करने लगते हैं बहुत ज़्यादा. मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को एक्टर्स के लेवल पे अगर लेके आ जाया जाए, आई थिंक देयर विल बी प्लेंटी ऑफ पीपल जो रिस्क लेने की एबिलिटी पैदा कर लेंगे. क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स आर ऑल अबाउट टेकिंग दैट रिस्क. तो अगर हम एक्टर्स को फॉलो करते हैं, उनकी लाइफ को फॉलो करते हैं या उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को फॉलो करते हैं जो उस एक्टर ने फॉलो किया, मुझे लगता है अगर एंटरप्रेन्योर्स को वहाँ पे ले जाएं तो ये कंट्री बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाएगी. दैट्स वन थिंग. मुझे दूसरी चीज़ ये भी लगती है, पैशन मीट्स पर्पस वो तभी हो सकता है इफ़ यू बिलीव इन द पावर ऑफ नाउ. एंड प्रोबेबली दिस इज माई लास्ट थिंग दैट आई विल से. पावर ऑफ नाउ तभी आती है अगर आप उस टाइम पे वो प्लंज ले लो. मैंने जब अपना लास्ट कंपनी स्टार्ट किया था, आई वॉज इन अ वेरी हाई पेइंग जॉब. बहुत ही कंफर्टेबल जॉब थी. प्रोबेबली कंपनी ने मुझे बोला था कि यार अगर आप छोड़ दोगे तो आपको बहुत सारा बोनस वापस करना पड़ेगा. एंड ट्रस्ट मी, मेरे लिए इट वॉज सच अ बिग डील कि मेरे लिए नहीं, मेरे आसपास के लोगों ने उसको इतना बड़ा डील बना लिया था क्योंकि वो लोग डिस्कस कर रहे थे यार बोनस मत वापस लो, एसयूवी ले लेते हैं एक. क्योंकि आई वॉज इन अ हाई पेइंग जॉब. और मैं चाहता तो वहाँ रुक सकता था 6 मंथ्स के लिए. एंड प्रॉब्ली अगर मैं 6 मंथ्स तक रुक जाता तो वो पैसे मेरे पास ही रहते और मैं अपना स्टार्टअप भी शुरू कर लेता. बट वो बिलीफ इतना स्ट्रांग था और मुझे पता था अगर मैं अभी 6 मंथ तक रुक गया ना, पता नहीं कल ये थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा. सो आई हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ नाउ, राइट नाउ. एंड मैं 6 मंथ्स भी रुक नहीं पाया. आप में से एंड पीपल हु आर वॉचिंग, अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि कोई बात नहीं 3 महीने बाद शुरू कर लेंगे, वो टाइम कभी नहीं आएगा. आई हैव सीन 90% ऑफ द ड्रीम्स डाई बिकॉज वो उस टाइम पे उसको परस्यू नहीं करते क्योंकि कोई ना कोई उसको आगे बोल देता है कि यार तुम ना 3 महीने बाद कर लेना. बेटा 3 महीने बाद ये कर लो, ये जॉब ले लो, उसके बाद वो कर लेना. कभी नहीं होगा वो.
and I think you should believe in the power of now. Before I leave, I want to say this. इतना ज़्यादा chaos है आज की दुनिया में. Instagram पे reels हैं, हर एक कोई ज्ञान दे रहा है. Everybody is telling you 3 things that you should look into, 2 things that you should look into. इतना chaos है, उसके बीच में अपना passion find करने के लिए I think you have to look inward. बाहर नहीं देख सकते हो. एंड जब इनवर्ड देखोगे ना, अपनी प्रॉक्सिमिटी में आपको अपना पैशन मिल जाएगा. आई प्रॉमिस यू दैट. क्योंकि आपकी लाइफ फाइनाइट है, आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशंस फाइनाइट है, और वो तभी आपको मिल पाएगा जब अपनी प्रॉक्सिमिटी में यू विल कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन एंड ग्रैब ऑन टू दैट अपॉर्चुनिटी. बिलीव इन द पावर ऑफ नाउ, एंड दैट इज हाउ यू विल फाइंड योर पैशन. पर्पस, अर्निंग, लर्निंग सब उसका बाय प्रोडक्ट है. थैंक यू.